Hello students, hope you all are doing well. This is Swarup sir from your own Swarup Gora YouTube channel. This is your own channel, okay? So today we have come up with a list of reference books that you must follow along with the lecture series to get sure shot success in NIC 2023 recruitment exam, okay? These are all the standard books I'm telling you, okay? That I'm going to explain over here. Okay, now let's start. And these books, these whatever the books I'm telling you, these are helpful for all the technical exams. Okay, that involves computer science. This is not only for this NIC 2023. So let's start. First, I am talking about the discrete mathematics. For discrete mathematics, CLU and DP Mohapatra. This book is very important, and you must have gone in when you were in graduation. Okay, BTech or BCA or MCA, you must have followed this book. So this is a very standard book, and you should follow this book. This is very important book. Okay. Wherever you have bought the lecture series, or you are doing you are taking lectures from us, but you should follow these standard books. Standard books are very important. Okay, do not follow any cheap books, Upkar publication or some other publication, these type of publications. Okay, do not go, first go through the standard books and follow the lecture series, and then the test series. You will surely get success in your exams, I'm telling you. Okay, now for probability and statistics, so this is one book. Okay, yeah, introduction to probability and statistics for engineers. Yeah, this is M Ross की book है. Yeah, and this is very important, so you should go through this book also for probability and statistics. And then digital logic and computer design. This one is for by Maurice Mano. This also आप लोग को पता है इस book के बारे में भी. ठीक है, this is digital logic. This book is also very important, and you should follow this book. Okay, then from computer system architecture. For computer system architecture, Maurice Mano is one of the best books, and you all know very well. So this is also one of the best books you should follow. And I think जो आप लोग जो graduation, post graduation, जो भी whatever qualification you have, and आप लोग जो exam दोगे, you must have all these books at your home also. Okay, that's why I'm telling all these books. These are the standard books that you should follow. और कोई भी recruitment exam होगा, they also follow the standard books because यूनिवर्सिटी के lecturers और college के lecturers वही question paper बनाते हैं, and they follow all these books. I'm telling you, you should follow this book. कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क दिस टैननबॉम आप लोगों ने बहुतों ने अवॉइड किया होगा. यू पीपल मस्ट हैव अवॉइडेड दिस बुक बिकॉज दिस बुक इज बिट टफ. बिकॉज when you go through the book ना, तो you feel it bit tough. तो लेकिन बट टैननबॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे? ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन जो टॉपिक है, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन टॉपिक, पूरी आप टैननबॉम आप फॉलो करो. टैननबॉम, दे आर गोइंग टू फॉलो द टैननबॉम ओनली, टैननबॉम पार्ट. और उसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में एक और टॉपिक है, दैट इंफॉर्मेशन थ्योरी, एंट्रोपी, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, चैनल कैपेसिटी थ्योरम. ये भी टॉपिक हम करेंगे because this also I did it. I know these topics very well, so we will do this topic also. Or if you follow my lectures, after that if you follow the book ना, it will be easy for you. तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ. टैननबॉम फॉलो करो. टैननबॉम के बाद एक है ये डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग एंड फोर्थ एडिशन. दिस एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू, दिस एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ एडिशन, आप लोग फोर्थ एडिशन का बुक फॉलो करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको लोग का नेटवर्क सिक्योरिटी के लास्ट के कुछ टॉपिक्स है, जो नेटवर्क सिक्योरिटी, इट इन्वॉल्व नेटवर्क सिक्योरिटी. आप लोग को बहुत कुछ पता चल जाएंगे लास्ट के टॉपिक्स में. आप लोग एक नेटवर्क सिक्योरिटी के पेपर है, वो पेपर का नाम क्या है, लेट मी टेल यू, साइबर सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी साइबर सिक्योरिटी. तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी a lot of things are there in this book, in the fourth edition, not in the fifth edition. Fifth edition में वो सारे ruled out हो गया, वो सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया था. बट इन द फोर्थ एडिशन ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स आर इन्वॉल्व. हाँ, लेकिन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक IoT या ब्लॉकचेन, AI, ये सारे नहीं है. तो इसके लिए आप लोग कौन सा बुक्स फॉलो करोगे? इसके लिए मेरे लेक्चर्स फॉलो करो, दैट इज मोर देन एनफ. क्योंकि बिकॉज वी विल बी कमिंग विद लेक्चर्स ऑल्सो. एक लेक्चर या दो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे टॉपिक. और वो यदि टॉपिक का आप नोट्स बना लो, तो वही क्वेश्चन आएंगे पेपर में. इट्स अ श्योर शॉट. ठीक है, वट एवर द इम्पोर्टेंट जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट वी डिड इट, वी नो वेरी वेल. तो उससे किस तरह क्वेश्चन है कि वी नो वेरी वेल, तो वी विल बी कमिंग अप विथ लेक्चर्स फॉर दैट. तो उसके लिए आपको बुक्स, मोटे मोटे बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं. उसके लिए आप हमारे लेक्चर्स ही फॉलो करो, दैट इज मोर देन एनफ. तो आपको फ्रोजन और आपको ये टैननबॉम दोनों बुक फॉलो करने हैं. टैननबॉम से आप क्या, ये जो टैननबॉम है, टैननबॉम से आप लोग क्या फॉलो करोगे? डेटा टैननबॉम से जो फॉलो करोगे, दैट इज डिजिटल कम्युनिकेशन. डिजिटल कम्युनिकेशन पार्ट आप डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यही वाले फॉलो करो, डिजिटल कम्युनिकेशन. लेट मी राइट इट पार्ट.
और यहाँ से क्या है, नेटवर्किंग पार्ट फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। हाँ, इसके बाद सी लैंग्वेज। अब आप बार बार आप सी लैंग्वेज, अब सी लैंग्वेज आप बोलोगे साइंटिस्ट बी में नहीं है, साइंटिफिक ऑफिसर में, सी लैंग्वेज क्यों बार बार कर रहा हूँ? तो सी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बुक है डेनिस एम रिची, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पेपर आप लोग को खाली साइंटिफिक ऑफिसर के लिए नहीं है, दिस इज ऑल्सो फॉर साइंटिस्ट भी। आप लोग को पता ही नहीं है, जो साइंटिस्ट जो भी डेटा स्ट्रक्चर का कोडिंग फॉलो करेंगे, दैट सी लैंग्वेज ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो फॉलो किया जाएगा डेटा स्ट्रक्चर के लिए। स्टैक, क्यूज, ट्रीज, लिंक लिस्ट, इसमें सी लैंग्वेज फॉलो करेंगे, तो आप लोग को सी लैंग्वेज भी करना पड़ेगा। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट साइंटिस्ट भी सोचेंगे हमारा सी लैंग्वेज नहीं है तो हम सी लैंग्वेज नहीं करेंगे, करना जरूरी है, इट्स अ मस्ट। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सी लैंग्वेज तो करना ही पड़ेगा, तो दिस इज मस्ट। तो ये वाली प्रोग्राम लैंग्वेज आप लोग को आना चाहिए, सी लैंग्वेज। अलॉन्ग विथ ये सी लैंग्वेज के साथ आप लोग क्या आ जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के लिए ये बुक बहुत अच्छा है। लेट मी कम अप विद द डेटा स्ट्रक्चर। हाँ, दिस वन बाय लैंगसम, ये डियर, ये भी बहुत अच्छा बुक है। ये बुक आप लोग फॉलो करो, आप लोग कॉलेज में भी फॉलो किया होगा दिस बुक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया ईस्टर्न इकोनॉमी एडिशन, दो पब्लिशर मिलकर ये बुक निकाले थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बुक आप लोग फॉलो करो फॉर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के लिए यही वाले बुक आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये तो दोनों में है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस। ये ई बाला गुरुस्वामी, आप लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये बुक फॉलो करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और ये बुक आप लोग को फॉलो करना है, यही वाली बुक, नथिंग एल्स। और डेनिस रिची इज अ मस्ट। डेनिस रिची आप लोग जब डेनिस रिची पढ़ोगे तो आप लोग को शायद कुछ भी ना समझ आए, तो क्या करोगे, यू शुड फॉलो माय लेक्चर्स फर्स्ट, उसके बाद ये बुक आप फॉलो करो। पहले लेक्चर करोगे तो आपको बुक पढ़ने में इजी हो जाएगा, समझने में इजी हो जाएंगे। पहले यदि आप बुक्स पढ़ना शुरू करोगे तो आप लोग बहुत कुछ कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं, तो क्या होगे, व्हाट विल हैपन, तो आप लोग को इट विल टेक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। लेकिन यदि इफ यू गो थ्रू द लेक्चर्स एंड यू देन यू फॉलो द बुक ना, इट विल बी इजी फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इससे आपको कॉर्बेन का बुक फॉलो करना है, कॉर्बेन, ये भी आप लोग को पता है, कॉर्बेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कॉर्बेन की बुक आप लोग फॉलो करो, दैट इज मोर देन इनफ। दीज आर ऑल स्टैंडर्ड बुक्स। और कंपाइलर डिजाइन के लिए एक बुक है सुधा रानी एस की, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बुक आप फॉलो कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाइलर डिजाइन। हालांकि कंपाइलर डिजाइन इससे भी समझ में नहीं आएंगे जब तक हम लेक्चर्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि कंपाइलर डिजाइन इज इन्वॉल्व विथ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आप लोग एक पेपर पढ़े होंगे, टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, वो तो टॉपिक आप लोग को कहीं यहाँ पे सिलेबस में दिया नहीं है। उसके बाद वाली पार्ट है कंपाइलर डिजाइन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर डिजाइन करने के लिए पहले आप लेक्चर्स फॉलो करो। तो थ्योरी, ये इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी टीओसी के मैं लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, नहीं, बट जहां जहां टीओसी के कॉन्सेप्ट यूज हुए विल बी एक्सप्लेन एंड विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो कंपाइलर डिजाइन ऐसे करके आप लोगों को करना है। उसके बाद आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम, इस एक यूनिवर्सल बुक है गैल्विन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैल्विन की बुक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक फॉलो कर दो तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गैल्विन फॉलो करो। उसके बाद डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट, इसके लिए आप कॉर्थ फॉलो करो, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्थ की फॉलो करो अलॉन्ग विथ माई लेक्चर्स, तो यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली, ठीक है। आप लोग खुद से फटाफट, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। द एग्जाम विल बी इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे क्या करें, बार बार बोल रहे जून में आ रहे हैं, कुछ नहीं, ये एक हाइप बनाया जा रहा है, देयर इज एग्जाम इन जून, ताकि बच्चों को टेंशन हो जाए। ऐसे कुछ नहीं है, अगस्त और सितंबर में ही आप लोगों के एग्जाम, आई एम टेलिंग यू, ओके। तो डू नॉट पैनिक। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए रॉजर स्पेसमैन का बुक है, ये बुक आप लोग फॉलो करोगे। ये सारे बुक्स आप लोग को पता है, बार बार आप लोग पूछ रहे हो रेफरेंस बुक्स कौन सा फॉलो करेंगे, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वही सारे बुक्स फॉलो करने हैं आप लोगों को, स्टैंडर्ड बुक्स। हाँ, उसके बाद ये वेब टेक्नोलॉजीज, HTML5, XML बेसिक कॉन्सेप्ट, MLB MBS आर्किटेक्चर, क्लाउड सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, AI, ब्लॉकचेन, ये सारे टॉपिक्स, ये मेरे लेक्चर करो, ओनली लेक्चर्स, मोर देन एनफ, ओनली लेक्चर्स, आई एम टेलिंग यू। उसके बाद पाइथन, सी लैंग्वेज, गोलैंग, ये जो ये सारे लैंग्वेजेस है, ये सारे मेरे लेक्चर्स ही फॉलो करो आप लोग। ये जैसे यहाँ पे प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर में ये क्या है, जावा है, डॉटनेट है, ओपन सोर्स PHP है, पाइथन है, गोलैंग है, नोड जेएस, इसके सिर्फ फॉलो माई लेक्चर्स, फॉलो माई लेक्चर्स। अब आप लोग सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में जो नॉन टेक्निकल जेनेरिक सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके, ऑल दिस थिंग्स, इसके हमारे लेक्चर्स बीच बीच में आते रहेंगे, तो यू फॉलो ऑल दोज थिंग्स,
ठीक है, तो यही सारे आपको बुक्स फॉलो करने हैं। तो गो ये सारे गो थ्रू द बुक्स, गो थ्रू माय लेक्चर सीरीज, और वेर एवर यू आर स्टडिंग, कोई भी चैनल में आप पढ़ रहे हो लेक्चर सीरीज के साथ ये बुक्स फॉलो करो, यू विल श्योरली गेट सक्सेस। ओके, जरूरी नहीं जब मेरे लेक्चर्स फॉलो करो, यू कैन फॉलो एनी अदर लेक्चर्स ऑल्सो, नॉट ए प्रॉब्लम। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड ऑल गेट सक्सेस, आप लोग पास हो जाओ, आप लोग को जॉब मिल जाए प्रॉपर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो फ्रॉम वेर एवर इज स्टडिंग, दैट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कहीं से भी पढ़ो, you should get success, that is the thing, that is the motive, and that is our motive also. Okay, that's all. Thank you.